Hi Sanjana, hi Sumit. वेलकम टू माई लैंग्वेज माई लर्निंग डेमो क्लास. हम लोग के साथ है आज समर्जिता मल्लिक जो कोलकाता से है. वो हमारे साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश पढ़ाती है. शी हैज़ एन एमए इन इंग्लिश. आज का सेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर है, जो समर्जिता हम लोग को अच्छे से सरल भाषा में समझाएंगे. तो समर्जिता, यू कैन लीड द सेशन नाउ. Okay. So, hello everyone. So, whenever we hear the term history, सबसे पहले हमको ये डर लगता है कि oh my God, I have to like remember all the dates and facts, and the syllabus is also pretty vast. So, we are always afraid of the subject history. So, today what I will do is I will try to make it easier for you guys by creating a tabulatory form and also by helping you to remember each and everything in a very short and precise manner. Okay, so I'm starting the presentation. I hope it is visible to everyone. Yes, sir. Okay, so today we will start reading about Indus Valley Civilization. Okay, so Indus Valley Civilization ये पहला टर्म सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? ये सिविलाइजेशन किधर था? किधर था ये सिविलाइजेशन? डज एनीबडी नो? No, ma'am. Okay, so this civilization, as we can understand from the term Indus, this civilization developed on the banks of the river Indus, which is currently situated in Pakistan. At that time, the Indian subcontinent was not divided between the India and the Pakistan countries. तो तब क्या था, ये इंडस रिवर के दोनों साइड में जो लोग सेटल किए थे, that grew into a very large civilization. Okay, because why? There was plenty of water available, there was great town planning, and the tools and implements and the metals that they used during this period was very advanced. हमको क्या पता है उधर, like in pre-history, Neolithic age तक खत्म हो जाता, right? उसके बाद क्या start होता है? Chalcolithic age, Bronze Age civilization, right? Always remember, Indus Valley civilization belongs to the Bronze Age civilization. So naturally, after the Neolithic settlements, तब तक लोगों को बेसिकली द बेसिक्स ऑफ सिविलाइजेशन वाज फॉर्म्ड, राइट? उनको एग्रीकल्चर पता चल गया था, उनको मेटल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया था, उनको कल्टीवेशन के बारे में पता चल गया था, उनको पॉटरी के बारे में पता चल गया था. सो the people of Indus Valley civilization, what they did, they took this to another level. Okay, and it is called that Indus Valley civilization उसके contemporaries से, मतलब इंडिया के या फिर ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के आजू बाजू में इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रो कर रहा था, राइट? सो एट द सेम टाइम वर्ल्ड की अदर प्लेसेस में, पृथ्वी की अलग जगहों में और भी कुछ civilizations were going on, right? For example, the Mesopotamian civilization, the Egyptian civilization. But it is said that among all these civilizations, among all the contemporary civilizations of IVC, that is Indus Valley civilization, this civilization was the most modernized and most well planned civilization. तो पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे. इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है? क्यों? याद रखना. Does anybody know why is it called a Harappan civilization? Okay. So Indus Valley civilization is called the Harappan civilization because Indus Valley civilization was made up of many cities, right? As we know. Mohenjo-daro, Harappa. But सभी सिटीज में से सबसे पहला वाला जो सिटी डिस्कवर्ड हुआ था, that was हड़प्पा. That is why Indus Valley civilization is also known as the Harappan civilization. As in 1921 AD, the first site of civilization that was discovered was called Harappa.
which is why this civilization is also known as the Harappan civilization. उसके बाद क्या हुआ? In 1947 when India and Pakistan got divided, हड़प्पा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया. इंडस रिवर भी मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में ही चला गया. And this civilization belongs to which age? Chalcolithic age or the Metal Age. वो कौन थे जिनको सबसे पहले ruins के बारे में, ये जो एक सिटी था, ये जो एक वास्ट सिविलाइजेशन था, इसके बारे में पता चला? चार्ल्स मेसन. इन्होंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया द ruins of this civilization. Ruins means the remainings of a destroyed civilization. So Charles Mason was the one who first noticed the ruins of this civilization. It is a very important question. क्या करता है ये लोग 1 mark में दे देते हैं. Who was the first person who discovered? Charles Mason was the first person who discovered the ruins of the civilization. In 19 उसके बाद क्या हुआ? In 1924 AD, Sir John Marshall, उन्होंने क्या किया? ये इंडस वैली रीजियन में एक्सटेंसिव एक्सकैवेशन किया, मतलब मिट्टी को खोद के अंदर क्या है वो निकाला. और उन्होंने ही फॉर द फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन ये टर्म दिया इस सिविलाइजेशन को. सो इफ द क्वेश्चन आस्क्ड हु गेव दिस name the Indus Valley civilization, the answer will be John Marshall. And if it is asked that who first noticed the ruins of this civilization, it will be Charles Mason. So don't get confused. See, I have made this into 5 points so that इंट्रोडक्शन में अगर सब लोग ये 5 पॉइंट्स को याद रखेंगे तो क्या होगा? पॉइंट्स में तो इजी हो ही जाता है रिमेम्बर करना. इसके अलावा क्या होगा ना, फर्स्ट 5 पॉइंट्स में ही आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे याद रखना है ये मेमोराइज्ड हो जाएगा. ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी कम टू इज मेनी हिस्टोरियंस. अब हमेशा हिस्ट्री में क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है? डेट, राइट? जिसको याद रखने में हम बहुत डरते हैं. सो व्हाट वी शैल डू इफ वी स्टडी इन अ पॉइंट फॉर्म, सो व्हाट विल हैपन? It will be easier for us to memorize the dates. So many historians propose different dates for the Indus Valley civilization, but widely accepted period was 2300 BC to 1750 BC. As we know, before Christ कम होता जाता है, right, till AD. So this is how we will remember about the introduction of Indus Valley civilization. Now, to form a gist in our head that Indus Valley civilization क्या है basically, इसके बारे में हमने 12 points बनाए हैं. ठीक है? These 12 points are the most important points of the Indus Valley civilization. ये सब points क्या होगा? पूरा जो जितना सारा cities था ना Indus Valley civilization का, उनको cover up करता है. Okay? So remember all these 12 points, we will already form a vast idea about what the Indus Valley civilization was. So it will basically give you an idea, or it will form the base of your preparation. So please note down these points. Indus Valley civilization का सबसे unique feature क्या था? It was its town planning, जो कि उसका contemporary जितना भी civilization था, like Mesopotamian, Egyptian, कोई भी civilization में ये feature नहीं था. The intensive town planning. The second picture shows that. See, there is a citadel. Then there is a great bath area जहाँ पे सब लोग नहाते थे. It is called for the religious purposes. And there was a low town and there was a higher town. बोला जाता है कि higher town में the aristocratic, the ruling classes of people used to stay. And in the lower town area, it was for the commoners. Okay, so we will read about it later. So first point में हमको क्या पता चला? That Indus Valley civilization was most distinctive for its town planning. कोई भी civilization का इतना अच्छा town planning नहीं था. Shirin Ratnagar, she is an important historian. She considered that Harappan crafts, मतलब उस time में ये जो first picture है, you can see the artisans who produced the products of the Bronze Age. That is the age that was prevalent during the Indus Valley civilization. The crafts were technically pure, मतलब technically much more advanced, much more qualitatively rich and enriching than the temporary civilizations like the Mesopotamian and the other ones. Another very important thing is silver. The metal silver was first time used in the Indus Valley civilization.
फॉरेन ट्रेड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस जमाने में थे, हाउ टेक्नोलॉजिकली एडवांस दे वे, ऑनगोइंग ट्रेड होता रहता था थ्रू द सी रूट्स. Because, and now how do the historians know about this? The same type of artifacts that have been discovered from Indus region has also been discovered from the ruins of Mesopotamian civilization. So automatically, this tells us that there was an ongoing trade between these two big civilizations of history. And how did that take place? Through the water routes. As you can see in the third diagram, I have given a map. इसमें देखो वाटरवेज में इंडस कैसे मेसोपोटामिया तक कनेक्ट होता है, ये शो किया गया है वो रेड इंक से. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए. गुड आर्टिफैक्ट्स, सिल्वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, good city planning and waterways, routes, trade through routes of water. Now another very important thing is that shipbuilding. It was also very important history of the Indus Valley civilization. Shipbuilding industry was very important. It was one of the most important occupations of the people of this civilization. And copper से ज़्यादा bronze होता था इस civilization में यूज, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कभी कभी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. और इस टाइम में कॉटन और वुलन टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था. Another thing which was very distinctive in the civilization was that till Neolithic age, what do we know? The houses were built with wood, straw that the people used to collect from the forest. But from this age, the people used to build mature houses using built burnt bricks, जो कि आज के जमाने में हम लोग भी करते हैं, right? So we can understand from this that how much technologically pure they were than the other civilizations. Another very important thing, कोई भी सिविलाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि उनका जो लिखा हुआ जो रिमेनिंग्स है, देयर बुक्स, देयर स्क्रिप्ट व्हिच वी कॉल द स्क्रिप्ट, क्या होता है वो हमको बहुत कुछ बताता है उस सिविलाइजेशन के बारे में. बट अनफॉर्चुनेटली इट इज सेड दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था वो डेसिफर्ड नहीं हुआ था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिफर? डेसिफर मीन्स द एबिलिटी टू रीड सर्टेन लैंग्वेजेस, राइट? वो अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो अभी तक किया नहीं गया है. इट हैज नॉट बीन एबल फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट और द हिस्टोरियंस टू रीड द स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इस टाइम में एक चीज जो बहुत ज्यादा फ्लरिश और एडवांस्ड हुआ, दैट वाज द मैन्युफैक्चर ऑफ pottery or vessels. They were usually made up of ceramics, casting and forging of metals. इससे the people of the Indus Valley civilization, ये वो लोग ना बहुत luxurious life spend करते थे. That is why jewelry, necklace, there was a very important rock called lapis lazuli. वो तब एक्सपोर्ट होता था, जो कि छोटे छोटे नेकलेसेस में दिया जाता है. इट इज अ काइंड ऑफ अ मेटामॉर्फिक रॉक which has a very vibrant color. तो शोट्टुगाई एक ऐसा ट्रेडिंग आउटपोस्ट था जहां पे ये लैपिस लजुली ट्रेड होता था. कभी कभी एक्सपोर्ट होता था और कभी कभी फॉर द लोकल्स दैट यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन फॉर ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशन. Another very important and distinctive feature of this civilization is citadel. Citadel क्या था? एक suppose एक city है. The city was divided into two sections. One section was the citadel, which was placed a little bit higher than the surroundings. मतलब आजू बाजू में जो buildings थे उससे थोड़ा सा higher था, और आजू बाजू में जो place which was lower than the citadel, that was usually regarded for the common people. But the king or the administrative section or the aristocracy of the civilization, that they used to stay in the citadel. Is there any question? Is there any question? संजना, आपको समझ में आ रहा है ना? समझिता जी समझा रही हैं बेटा. यस हमारा. ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं. Okay. मैं पढ़ लिया मेरा कितना. Sorry?
मैम Could you be a little bit loud? थोड़ा सा louder बताएंगे? मैम एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, ये कौन सा वाला एक्सप्लेन करूँ फिर से? Can you hear me? सुमित, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आप चैट पे लिख दोगे क्या? If you have any doubt, just you can write in the chat as well. मैम बायोडा जितना रूल था ना वो सब। You want me to repeat it? यस मैम। रूल नहीं, फीचर्स है। सिल्वर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, फर्स्ट यूज किया गया था। ट्रेड था मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बीच। सिटाडेल था जहाँ पे किंग्स रहते थे, बाकी टाउन्स लोअर टाउन में नॉर्मल पीपल रहते थे। इम्पोर्टेंट रॉक वाज लैपिस लजुली which was used for ornamental purposes, मतलब सजने के लिए, नेकलेसेस बनाने के लिए, ठीक है। और श्री रत्नागर she was an important historian जो बोलते थे कि टेक्नोलॉजिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो क्राफ्ट था वो आजू बाजू में जो भी सिविलाइजेशन थे उनसे ज्यादा एडवांस। और एक चीज जो कि बहुत यूनिक था इस सिविलाइजेशन का, दैट वाज द टाउन प्लानिंग, द सिटी प्लानिंग एंड द पॉटरी। इट वाज मेड अप ऑफ सेरामिक्स। सेरामिक्स तब के जमाने में वो लोग यूज करते थे। सो जस्ट थिंक, जो कि आज हम करते हैं। सो जस्ट थिंक हाउ एडवांस दे वर। ओके, सो दिस इज द जिस्ट। Now, important cities of Harappan civilization or Indus Valley civilization. सबसे पहला है हड़प्पा, because ये सबसे ज्यादा important क्यों है? Because this was the first city to be discovered. जब हम हर एक सिटी पढ़ेंगे, हमको क्या क्या चीजें याद रखना है? एक, वो कहाँ सिचुएटेड है। सेकेंड, किसने डिस्कवर किया। थर्ड, द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम देयर। और क्या, जो सबसे यूनिक फीचर है उस सिटी का, मतलब जो सिर्फ उसी सिटी में देखा गया था, बाकी सिटीज में नहीं था। सो दैट व्हाट विल दैट डू? दैट विल हेल्प अस टू रिमेम्बर द फैक्ट्स। ओके, सपोज हम बोलते हैं कि कौन सी सिटी में, एक सिटी ऐसा है हम पढ़ेंगे जहाँ पे सिटाडेल नहीं था। ओके, सो जब भी हमको पढ़ना है, हमको वो सिटी दिमाग में हाईलाइट करना है कि इसमें तो ये फीचर नहीं था। सो इफ वी remember like that, it will be easier for us to memorize during the examinations. Okay, so now for Harappa we shall see that it was situated in the Montgomery district of Punjab in Pakistan, where on the banks of the river Ravi. हर एक सिटी का रिवर बैंक दिया हुआ है क्योंकि the presence of a water body is very important for any civilization, क्योंकि हमको पानी हमेशा लगेगा एक civilization build होने, because it was the staple for the agricultural purposes. Okay, agriculture के लिए हमको पानी तो लगेगा ही. So if for each and every city we will always remember the who discovered that city, that site, and where was it discovered. Okay, so it was discovered by Dayaram Sahani, and where is it located? Punjab in Pakistan on the banks of the river Ravi. और इसका क्या स्पेशल फीचर है? इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इंडस साइट एंड मॉर्टिमर विलर बहुत अच्छे से सिटी को एक्सकावेट किया है, मतलब मिट्टी के अंदर क्या है वो स्टडी किया है. इधर से एक स्टोन सिंबल ऑफ अ फीमेल फिगर, ये जो फर्स्ट वाला जो ब्लैक वाला जो फिगर है, दिस वाज डिस्कवर्ड. ओके, सो इफ अ क्वेश्चन कम्स, वेयर वाज द नटराज discovered, we will write Harappa. 6 granaries. Granaries क्या थे? Granary was a kind of a store room, जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा साइज का स्टोर रूम एक सिटी का, जहाँ पे द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो सरप्लस होता है, मतलब एक सिविलाइजेशन सपोज अपने लिए मतलब अपने लिए खाना बनवा रहा है, मतलब क्रॉप्स दे आर ग्रोइंग फॉर देमसेल्व्स, वो यूज कर लिया वो क्रॉप्स थोड़ा बहुत, उसके बाद एक एक्स्ट्रा रहता है, राइट? वो एक्स्ट्रा जो रहता था क्रॉप्स, वो लोग क्या करते थे? दे यूज टू स्टोर इट फॉर द टाइम्स ऑफ नीड. सपोज कभी
कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, फ्लड हो गया, तब खाना तो नहीं मिलेगा, राइट? द क्रॉप्स विल बी ऑल डिस्ट्रॉयड. So what they did, they used to store them in these granaries for later on usage during emergency times. Recently, it has been discovered by J.M. Kenor that एक बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रिक बिल्ड स्ट्रक्चर है हड़प्पा में, जो कि बहुत बड़ा है. ओके, उसको भी एक ग्रैनरी ही कंसिडर किया जाता है. ओके, एंड हड़प्पा वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बोट मेकिंग. सो आई होप हड़प्पा का जो फीचर्स था ये क्लियर हो गया, राइट? Yes, ma'am. रिप्लाई फास्ट. Yeah. ओके, डाउट? No. If I ask you that where is Harappa located, what will be the answer? Ma'am, Punjab, Pakistan. The answer will be it is located in the Montegomery district of Punjab in Pakistan on the banks of the river Ravi. Okay. Okay, ma'am. Next important city is Mohenjo-daro. Mohenjo-daro means mound of dead. Okay. ये कहाँ लोकेटेड है? लरकना डिस्ट्रिक्ट, सिंध का, ऑन द बैंक्स, अगेन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस. मैक्सिमम सिटीज हड़प्पन सिविलाइजेशन का ना ये इंडस के ही बाजू में सिचुएटेड है. किसने डिस्कवर किया था? राखालदास बैनर्जी इन 1922. इस सिटी का सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था? द ग्रेट बाथ. सिटी के बीच में एक ऐसा, ये देखो फर्स्ट वाला पिक्चर में, एक ऐसा एरिया था जिसको देख के लगेगा that if it is filled it looks like a swimming pool. It is said that the people religious occasion में ये इसमें आके नहाते थे. ठीक है, इधर से भी शिप और शिप बिल्डिंग का इंडस्ट्री का रिमेन्स मिला गया था, और एक इधर से भी एक ब्रोंज डांसिंग गर्ल वाज फाउंड. ओके, डिफरेंस क्या है ध्यान से देखो. A stone symbol of a dancing girl was found from Harappa, but a bronze dancing girl was found from Mohenjo-daro. इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. So you while studying you have to study meticulously. ये याद रखना है. हड़प्पा में स्टोन गर्ल, स्टोन का ब्रॉन्ज गर्ल, मतलब स्टोन का एक फिगर डिस्कवर्ड हुआ था, और मोहेंजोदारो में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वाज डिस्कवर्ड. ओके, एक और फीचर इंपॉर्टेंट क्या है मोहेंजोदारो का? इट वाज द लार्जेस्ट इंडस साइट. ठीक है, लेकिन इसको कंसिडर किया जाता था मोहेंजोदारो को लार्जेस्ट इंडस साइट, लेकिन अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है एक न्यू प्लेस जिसका नाम है राखी गढ़ी, जो कि कंसिडर किया जाता है द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट. सो इफ द क्वेश्चन कम्स और तुम सबको ऑप्शंस मिलता है राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी होगा, और अगर राखी गढ़ी नहीं देते हैं ऑप्शन, स्टिल मोहेंजोदारो है, तो तब मोहेंजोदारो ही लिखना. सो इट वॉज अ वेरी वेल प्लान सिटी. सेकेंड पिक्चर में देखो, इट हैड अ सिटाडेल. देखो एक बीच में एक ऊंचा टाइप का बिल्डिंग है ना, वो दैट इज सिटाडेल, एंड नीचे का जो छोटा छोटा बिल्डिंग्स है आजू बाजू में, दैट वाज कॉल्ड द लोअर टाउन्स. ये सिटाडेल में रहते थे द एरिस्टोक्रेटिक पीपल. द लोअर टाउन्स में दैट वाज फॉर द कॉमनर्स. बहुत ही वेल प्लान सिटी था, और बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, एंड ऑल द बिल्डिंग्स वेर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स. Next we come to Lothal. यह कहाँ situated है? It is another very important city. Okay, after Mohenjo-daro and Harappa. It is located on the banks of river Bhogava, गुजरात में. किसने डिस्कवर किया था? एस.आर. राव. क्या इंपॉर्टेंट फीचर था? इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन, एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड. While reading ना, you have to mark these points. Important port town, evidence of dockyard. डॉकयार्ड जहाँ पे शिप बिल्डिंग होता है, राइट? शिप्स रहता है. So it was these two were found from there, and something which was only found in Lothal was a double burial. मतलब डबल बरियल मतलब एक जगह में एक से ज्यादा दो जन को bodies were buried. Okay, it was only found in the burial site of Lothal, not any other city of Indus Valley civilization. And ivory scale and terracotta model of ship was
found from here. So we know that Lothal is a lot about shipbuilding and the types of ships and dockyards, right? And another thing which is very unique to this site is the double barrier. Next we come to Chanhudaro. Where is it located? It is Sindh in Pakistan on the banks of the river Indus. As I say, there are many cities which are located on the banks of the river Indus. It was discovered by Noni Gopal Mojumdar. And the only city was with, मैंने थोड़ी देर पहले बोला that there was a city which did not have any citadel. This is that one. So जब भी question आएगा which city, which is very important, which city does not contain a citadel, the answer will be Chanhudaro. It was an industrial town and ink pot and lipstick. So just think how luxurious the life of the people was at that time. Ink pot, matlab there was writing prevalent and education was there and lipstick for luxurious purposes. So this is what is about Chanhudar. कालीबंगान ये कहाँ है? राजस्थान में, रिवर घाघर के पास. अमलेंदु घोष डिस्कवर किए थे. एंड बोन्स ऑफ कैमल्स, कैमल्स मिलता है राजस्थान में. और कालीबंगान, राइट? कालीबंगान जब भी हम सुनेंगे हमारे दिमाग में आएगा राजस्थान. कौन सा रिवर है? घाघर है. किसने डिस्कवर किया? अमलेंदु घोष. एंड राजस्थान में कैमल्स है और राजस्थानी चूड़ियां बहुत फेमस होता है, राइट? सो दीज टू आर द फीचर्स ऑफ कालीबंगान. ओके, सो ऐसे हमको याद रखना है. वी विल हैव टू ब्रेक इट इन वेरी सिंपलर थिंग्स. ओके, इज देयर एनी डाउट सो फार? Ma'am. Okay. Now next important site is Dholavira. It is located in Gujarat. किसने डिस्कवर किया था? जगपति जोशी. इंडिया में आज के जमाने में, सपोज ये तो बहुत दिन पहले का था, अभी पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान में. अगर अभी पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे बड़ा रूइन हड़प्पा का कौन सा जगह है? धोलावीरा. इंडिया में ओवरऑल पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी या फिर मोहनजोदारो पाकिस्तान में. धोलावीरा का और एक फीचर क्या था? स्टेडियम डिस्कवर किया गया था सिर्फ धोलावीरा में. सो थिंक such a entertaining life they had in those times. That is why it is called the most advanced civilization of history. Step well, तब के जमाने में स्टेप वेल भी डिस्कवर किया गया था इधर से. और धोलावीरांस they knew the art of water conservation. What is water conservation? जब बारिश होता है, suppose there is a lot of air water which remains. क्या करते हैं? उनको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि जब सपोज रेन ना हो तब उसको यूज किया जाए. When there is a scarcity of water, then we can use that. So Dholavira में what we know, largest Indus site in India. Only stadium was there, and they knew the art of step well and water conservation. Water conservation, Dholavira. Okay, citadel, Chanhudaro. Shipbuilding dockyard, Lothal. Okay. So ऐसे हमको याद रखना है. नेक्स्ट, चुटकोतोड़ा. दिस इज लोकेटेड इन गुजरात, रन ऑफ कच्छ के पास. जगपति जोशी वाज द डिस्कवरर ऑफ दिस. हॉर्स के लिए दिस प्लेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट? एशफील्ड पॉट सिर्फ इधर से ही डिस्कवर किया गया था. तो ऐसे हमको पॉइंट्स करके याद रखना है. आमरी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, दोनों मिलकर डिस्कवर किया था. कौन सा सिटी? गुरे एंड फिजला में. सिंध में है, बैंक्स ऑफ रिवर इंडस. आप क्या कर सकते हैं? रिवर्स को 3 जगह में टेबल फॉर्म करके, रिवर्स इंडस, सपोज भोगावा, उसके नीचे आप सिटीज लिखते रहिए. इंडस में ही 5-6 हो जाएगा. So the rest of the things, that the rest of the cities will be easier to memorize. Rhino for the first time was discovered from Amri. अभी ये कहाँ पे है? इंडिया में है, हरियाणा में. पूछ सकता है कौन कौन से साइट्स अभी इंडिया में है. ओके, कोटीजी. सिंध ऑफ पाकिस्तान ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस. यहाँ से एक ऑक्स का फिगर डिस्कवर किया गया था. किसने किया था ये प्लेस डिस्कवर? एसआर राव. अगर पूछा जाता है कि फिगर ऑफ ऑक्स कहाँ से आया था डिस्कवर होके? कोटीजी. ओके, आर यू फाइंडिंग इट इजी टू रिमेम्बर? ऐसे या फिर वो पूरा बुक से रट्टा मारना है?
No, right? So it will be Yes, ma'am. easier for us if we read it in such a point form. Other small cities of this civilization are Rangpur, Daimabad, Mandat, Bhirana, Ropar. यहाँ इसका सिर्फ क्या याद रखना है, कहाँ सिचुएटेड था, किसने डिस्कवर किया था. Rangpur, located in Gujarat on the banks of river Madai, किसने डिस्कवर किया था, MS Watts. You can do what you can do is you can just make a tabular form and memorize them. Rangpur पहला चार्ट में होगा, Rangpur लोकेशन डिस्कवरी, रंगपुर गुजरात रिवर एक और टैब होगा, रिवर एंड डिस्कवर्ड बाय होम. दाइमाबाद महाराष्ट्र, क्या डिस्कवर किया गया था, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से, कॉपर का बनाया हुआ एक चैरियट which was used to fight wars. Chariot was also always used to fight wars, right? So a copper made chariot was found from Daimabad. Mandat, it was the northernmost Indus site. If the question is asked the northernmost Indus site कौन सा है, it will be Mandar. Present location Kashmir. Discovered by जगपति जोशी. भिराना फतेहगढ़ में है. रोपर ये कहाँ है, पंजाब, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सतलज. ये एक ही साइट है रिवर सतलज के बाजू में, रोपर. सो इट इज इजियर टू मेमोराइज. किसने डिस्कवर किया था, वाई शर्मा. और यहाँ से क्या मिला था, कॉपर एक्स. कंफ्यूज मत हो जाना, कॉपर चैरियट दाइमाबाद, कॉपर एक्स रोपर. ओके, नाउ इंडस सिविलाइजेशन तो बहुत फ्लरिश था. वी नो द पीपल ऑफ द सिविलाइजेशन वाज इकोनॉमिकली एग्रीकल्चरली बहुत रिच थे. ओके, सो हर एक सिविलाइजेशन का एक एंड भी होता है, राइट? सो ये एंड का बहुत सारा रीजंस हो सकता है. सपोज कोई महामारी आ गया तब के जमाने में, या फिर कोई अर्थक्वेक हो गया, नेचुरल डिजास्टर, या फिर वो लोग को रिप्लेस कर दिया कोई और लोग इन्वेट करके, ये भी हो सकता है, राइट? सो we have several theories which are based on the deploying, means the degeneration of the Indus Valley civilization. First is Aryan invasion. ये किसने किया था, recommend Mortimer Wheeler and Gordon Child. Okay, so Mortimer Wheeler and Gordon Child, they say that the इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही कौन सा सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन, राइट? वो किसने किया था स्टार्ट, आर्यंस. आर्यंस आ गए थे इंडिया में, उसके लिए उनके लिए ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, राइट? सो इट इज सेड तब इन लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे 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 एक्सटिंक्ट हो गया. इट इज सेड बाय मॉर्टिमर व्हीलर एंड गॉर्डन चाइल्ड. इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, व्हिच मीन धीरे धीरे पानी सब रिवर्स का सूख गया, इतना ज्यादा यूज होता था, तो a civilization cannot sustain without water for a long time, right? So इसीलिए धीरे 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 the people from this area they migrated to कोई और जगह चले गए पर रहने के लिए, because यहाँ पे लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं था. This theory was said by Fair and Gordon. नेक्स्ट, रिवर कोर्स. रिवर अपना कोर्स ही बदल दिया, मतलब जो रिवर सपोज वेस्ट में था, इतना ज्यादा इकोलॉजिकल चेंज हुआ, वो धीरे धीरे वेस्ट से बहना स्टार्ट कर दिया. सो नाउ द वेस्ट में जो पीपल थे उनका तो पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट? इफ such a big water body falls upon them, right? So this is how MS Watts and Dales think the deployment of the civilization started. There was a very important river named Ghaggar which used to give a lot of water to the civilization to sustain its life. क्या हुआ, ये घाघर जो रिवर था वो ड्राई हो गया. तो ड्राई होने के बाद क्या होता है, नेचुरली एक पौधा जैसे सूख जाता है, एक सिविलाइजेशन भी ऐसे ही धीरे 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 मर जाता है. एग्रीकल्चर नहीं होगा, फिर ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगा, अदर थिंग्स विल आल्सो गेट डिसबैलेंस्ड. सो ऐसे DP Agarwal and so they claim that the drying of the river Ghaggar was responsible for the deploying of the Indus Valley civilization. Lastly, K.R. Kennedy, इन्होंने क्या बोला, नेचुरल कैलामिटीज आ गया, मतलब अर्थक्वेक या फिर कोई बहुत बड़ा महामारी जिसमें lakhs and lakhs of people died. So these are the opinions of historians about how the civilization went. So
दिस इज हाउ वी नो कैसे ये सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ, कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स था इस सिविलाइजेशन का, और कैसे कैसे ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होता गया. ओके, एनी डाउट सो फार? No, ma'am. Okay, so this is it for today. Okay. सुमित, संजना कैसे लगे? अच्छा लगा मैम. Okay, thank you Samantha for this wonderful lesson What on about industrial civilization. Yeah. अगर संजना को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो. संजना, आपको कुछ पूछना है? नो ना. Okay. समझ में आया ना संजना? कौन कौन सा पॉइंट्स अच्छा लगा या फिर नहीं, ऐसा लगा कि इस पॉइंट में प्रॉब्लम रिमेम्बर करने? सारा पॉइंट से अच्छा समझ में अच्छा से आया, लेकिन समझ में आया ना? लाइक ऐसे करके अगर पढ़ोगे तो हिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी. कैन यू अंडरस्टैंड दैट? हिस्ट्री को हमें इजी करके पढ़ना है, डिफिकल्ट करके नहीं, सिंपलर करके पढ़ना है. हम जब खाना खाते हैं हम उसको निगल नहीं जाते, हम उसको पहले सिंपलर सब्सटेंस पे डिवाइड करते हैं हमारे माउथ में, राइट? उसके बाद वी swallow it, right? So that is how we will read about history. So इसलिए you have to read it in such a point or tabular form. Okay. ओके मैम, थैंक यू.